My precious brothers and sisters, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I welcome you this day to listen God's word. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आज के इस दिन परमेश्वर के अमूल्य वचन को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। In the previous episodes, पिछले एपिसोड में I was talking about the condition of the human being. हम मनुष्य की दशा के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। Why the people are having so much a problem? क्यों लोग इस तरह की समस्या या फिर परेशानियों में पड़े हैं? Why they are suffering? वो क्यों दुख उठा रहे हैं? Why they are struggling? वो क्यों कश्मकश में पड़े हैं? Why they are living in fear? वो क्यों डर में जी रहे हैं? With whom they are afraid? और वो किससे डरे हुए हैं? Beloved, मेरे प्रिय लोगों, the Bible it says, बाइबल ये कहती है the devil, कि the शैतान, demon, कि वो दुष्ट, the Satan, वो शैतान, he deceived the people उसने लोगों को भरमा दिया है and is deceiving the people, और वो अभी भी लोगों को भरमा रहा है keeping all the people under his control, और सभी लोगों को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, under his control, अपने नियंत्रण में रखे हैं। doing like this, keeping the mind is darkened, वो ऐसे ही करता है, लोगों के मन को अंधियारा कर देता है, eyes are darkened, उनकी आंखें अंधी कर देता है, understanding is उनकी darkened, समझ को अंधा कर देता है, heart is hardened, उनका हृदय कठोर कर देता है, keeping the people senseless condition, लोगों को बिना किसी समझ की दशा में रख देता है keeping the people speaking, keeping only in lies, और लोगों को केवल वो झूठ में रखता है, away from the truth, सत्य से दूर रखता है and the keeping of people under his trap. और वो लोगों को अपने जाल में फंसा कर रखता The है। people have been taken captive, लोग इस तरह से बंधुआई में चले keeping जाते the हैं people inside the prison, और लोगों को वो जेल में डाल कर रख देता inside the है prison, dark room of the prison. और उस जेल के अंधियारे कोठरी में रखता The है। eyes are blinded. उनकी आंखें अंधी कर दी गई हैं। My beloved, this is the condition he is keeping the people. मेरे प्रिय लोगों, वो लोगों को इसी दशा में रखता है And he is controlling them, और वो उन पर नियंत्रण करता है, using them उनका उपयोग करता है to do his wicked works. कि वो लोग उसके दुष्टता के काम करते चले जाएं। Why he is using them? वो उनका उपयोग क्यों कर रहा है? Because this man क्योंकि ये मनुष्य, is having the full authority and power over this world. क्योंकि इसके पास इस संसार के ऊपर पूरा अधिकार और पूरी सामर्थ है। God has given this authority to man. परमेश्वर ने मनुष्य को ये अधिकार दिया है। God said, परमेश्वर ने be कहा, fruitful, फलवंत हो जाओ multiply, और बहुगुणित हो जाओ subdue it, और इसे वश में कर लो, fill the earth, इस पृथ्वी को भर दो have dominion over all these things. और इन सारी बातों के ऊपर में अधिकार रखो। This authority is still available to man. और ये अधिकार तो अभी भी मनुष्य के लिए उपलब्ध है। Devil doesn't have authority. शैतान के पास में कोई भी अधिकार नहीं है। Devil has been thrown out from heaven. शैतान को तो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है। God has thrown him out from heaven. परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया है। This wicked devil, ये दुष्ट शैतान, this is Satan. ये शैतान His है। name is Lucifer. उसका नाम लूसीफर था Along with him, so many angels fell down. और उसी के साथ बहुत से स्वर्गदूत नीचे गिर गए। He is deceiving the people. वो लोगों को भरमा रहा है। My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, That's how the people are under his control. और इसी तरह से लोग उसके नियंत्रण में हैं, Total helpless. पूरी तरह से असहाय दशा में He's हैं। keeping the people totally helpless. वो लोगों को पूरी तरह असहाय दशा में रखता है, Sense- उनकी कोई सहायता नहीं करता, Senseless condition. नासमझी की दशा में वो रखता है। They have no sense. वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। We can't blame them. उन पर आप दोष नहीं लगा सकते हैं। That's the reason. यही तो कारण है। The Lord Jesus Christ on the cross, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, and people are just afflicting him, oppressing him, beating him, crucifying him, spitting on his face. So many things they did Jesus on the cross. और जब यीशु क्रूस पर थे तो लोगों ने उसे मारा, उसे पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, उस पर थूका और ऐसे बहुत से काम थे। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे तब लोगों ने उसके साथ ऐसे व्यवहार किया। Jesus did not revile at them. यीशु ने उन पर वापस नहीं चिल्लाया। The Bible says like this. बाइबल इस तरह से कहती है। He said, यीशु ने कहा, see 1 Peter 2:22, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 में देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, who committed no sin, Jesus who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. nor was deceit found in his mouth. When he was reviled, When he was reviled,
रिवाइल नॉट अगेंस्ट, reviled not against. व्हेन ही सफर्ड, When he suffered, ही थ्रेटन नॉट, he threatened not, बट कमिटेड हिमसेल्फ टू हिम दैट Commit- जजेस राइचसली, committed himself to the one who judged righteously. Next, who his own self bear our sins he own self bear our sin, in his own body on the tree. one body on the tree. Beloved, देखिए ये वचन कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। इस तरह ये वचन कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। here see the Lord Jesus. हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु, They were all attacking him. वो सब उस पर हमला कर रहे थे। He did not attack back to him, उसने- back to them. उसने उन पर फिर हमला नहीं किया। Jesus was suffering. देखिए यीशु दुख उठा रहे थे, He did not question back to them. उसने उनसे सवाल नहीं पूछा, He has not taken revenge on them. उसने उनसे बदला नहीं लिया। Why? क्यों? Because Jesus knew very well क्योंकि यीशु अच्छे से जानते थे it is not been done by these people. कि ये तो इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। They don't know what they are doing. वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, That's why he has committed himself to God. और इसलिए उसने खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। And at last he said, और आखिर में उसने कहा, Father, हे पिता, forgive them. इन्हें क्षमा कर, They do not know what they are ये doing. नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Father, forgive them. पिता, इन्हें क्षमा They do कर, not know what they are doing. ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Then who was doing? तो फिर कौन कर रहा It's the था? devil. ये शैतान था, It is this evil force, ये दुष्ट की शक्ति थी, this Satan, ये शैतान, this enemy of people and God. ये तो परमेश्वर और लोगों का शत्रु है। He is using these people वो इन लोगों का उपयोग कर रहा to था destroy Jesus. कि यीशु को नाश कर दे। My beloved. मेरे प्रिय Even लोगों, today the same thing happens. और आज भी यही तो हो रहा है, Same. बिल्कुल ऐसा ही। Why they do? वो ऐसा क्यों करते हैं? It is not done by man. ये मनुष्य के द्वारा नहीं किया They जाता don't है। know what they are doing. वो नहीं जानते वो क्या कर रहे The हैं। enemy is using the people, शत्रु लोगों का उपयोग करता है, keeping the people under this condition, लोगों को ऐसी दशा में रखता है, using the authority the man is having मनुष्य के पास जो अधिकार है उसका उपयोग करता है, without his knowledge, उसके ज्ञान के बिना ही keeping this person in this condition. वो इस व्यक्ति को इस दशा में रखता है, He is using them वो उनका उपयोग कर for रहा है destroying the human being. कि इस तरह से वो मनुष्य को नाश कर दे। My beloved, that's what the devil is using. मेरे प्रिय लोगों, शैतान इसी का उपयोग कर रहा That's है what he is doing it. और वो यही तो कर रहा है। Simple example I want to tell you. मैं आपको एक सरल उदाहरण बताता हूँ, I will tell you in detail, I will talk. मैं इसको बताऊंगा और फिर विवरण से समझाऊंगा। Now for one question. बस अभी एक ही सवाल है, So many people in this world are living in sickness and sin and diseases. आज इस संसार में बहुत से लोग पाप में, बीमारी और रोगों में जी रहे हैं। Tell me, is this sickness and diseases are your friend or your enemy? मुझे बताइए कि ये जो बीमारी और जो रोग हैं, ये आपके मित्र हैं या फिर आपके शत्रु हैं, या आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? Just imagine. बस कल्पना कीजिए, Really, they are enemies. सच में ये तो शत्रु हैं, ये निश्चय ही शत्रु है। Satan is enemy. देखिए ये सब तो शत्रु है मनुष्य के। Sickness is enemy. बीमारी तो शत्रु है, Disease is enemy. रोग जो है वो हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं। See, do you know that? क्या आप ये जानते हैं? Who is doing it? तो ये सब कौन करता है? The enemy. शत्रु। Devil. शैतान ही। Devil. शैतान Afflicting the people with this sickness and disease. वो लोगों पर इस तरह से बीमारी और रोग लेकर आता है। It is a enemy. ये तो शत्रु है। Everyone should know that. हर एक को ये जानना First चाहिए। of all, you recognize that he is an enemy. सबसे पहले जानिए शैतान आपका शत्रु है Deal with him accordingly. और इसी के अनुसार उससे व्यवहार कीजिए, Deal with him accordingly. और इसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार कीजिए। आप उसके साथ निपट लीजिए, व्यवहार करें। Jesus says, यीशु ने कहा, Acts chapter 10:38. प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में उसने कहा है,
It says like this. ये इस तरह कहता है, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि He went on doing good. वो भलाई करता फिरा। That means, इसका मतलब it says clearly, ये स्पष्ट कहता है, oppression of the devil. शैतान के सताए हुए थे जो लोग, Affliction of the devil. यानी जो शैतान के सताए हुए थे। Who is doing? ये कौन कर रहा है? Devil. शैतान। Devil. शैतान That's what he is doing to you. वो आपके साथ यही करता है। How many people recognize this? कितने लोग इसे पहचानते हैं? How many people know about it? कितने लोग इसके बारे में जानते What हैं? for the sickness comes? बीमारियां किस लिए आती हैं? Number one, नंबर it will 1, steal all your money. कि आपका सारा पैसा चुरा ले, It will come and kill you वो आकर आपको मार देगी, and destroy. आपको नाश करेगी। Jesus said like that. यीशु ने इस तरह से कहा। John chapter 10:10. यूहन्ना 10:10 में, The thief comes to steal, kill and destroy. चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। That's what is one of the method I said, the sickness. और उसका एक तरीका है, जैसे मैंने कहा है, कि वो बीमारी है। This is the tool that enemy is using it to destroy the people. ये एक साधन है जो शत्रु उपयोग करता है कि लोगों को नाश कर दे। Is it not required to be recognized this wicked person? इस दुष्ट शैतान को जानने के लिए क्या ये बात काफी नहीं है? Recognize it, my beloved brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, आप इस बात को पहचान लीजिए। When you are living on this earth, जब आप इस पृथ्वी पर जीते हैं, get into the word of God. परमेश्वर के वचन में जाइए, Meditate this word. इस वचन पर मनन कीजिए, Know this wicked enemy. इस दुष्ट शत्रु को जान लीजिए, What is his plan? उसकी योजनाएं क्या What है, is his scheme? उसका उद्देश्य क्या है, What is his aim? उसका लक्ष्य क्या है, What is his purpose? उसका उद्देश्य क्या है। All things we should know. सब कुछ हमें जान लेना चाहिए, And accordingly, और उसके अनुसार you can resist him. आप उसका सामना कर सकते The हैं। Bible tells us, बाइबल हमें बताती है do not give place to the devil. कि आप शत्रु शैतान को कोई स्थान न दें, Don't give him place. आप उसे कोई भी जगह न दें। The moment you give him place, जिस पल आप उसे कोई जगह दे देते हैं, he will come in, तो वो आएगा, he will enter you, वो भीतर आएगा, he will totally and completely destroy you, वो आकर पूरी तरह से आपको नाश कर देगा, and he will take you और वो आपको ले लेगा, with him अपने साथ ले जाएगा into the eternal fire that is prepared for him. उस अनंत काल की आग में जो कि उसके लिए तैयार करके रखी है। Not want to go there. और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी वहां That's पर why जाए, Jesus came. और इसीलिए यीशु आए। Jesus came. यीशु आए। He said, John 10:10, यूहन्ना 10:10 में उसने I कहा, have- यूहन्ना 10:10 I में, have come मैं इसलिए आया to हूँ give you life, कि तुम्हें जीवन दूं life abundance. और बहुतायत का जीवन दूं। Why Jesus came here? यीशु यहाँ पर क्यों आए? 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus came. यीशु इसलिए आए। Who is Jesus? यीशु कौन है? It's a mystery. ये तो भेद है। Today also millions of people are discussing about who is Jesus. आज भी लाखों लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। इस बात पर बातें करते Is जा he रहे हैं। God? क्या वो परमेश्वर है? No. नहीं नहीं नहीं। And who is he? तो वो कौन है? So much of discussion. इतनी बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और with बहनों, the knowledge of this world, इस संसार का जो ज्ञान है, with the knowledge of your flesh, आपके शरीर के ज्ञान के द्वारा you will not able to understand who is this Jesus आप Christ. नहीं समझ पाएंगे कि ये यीशु मसीह कौन है। If you want to know who is this अगर Jesus जानना Christ, चाहते हैं कि ये यीशु मसीह कौन है, only one person can reveal him to you. तो केवल एक ही व्यक्ति उसे आप पर प्रकट कर सकता है। केवल एक ही व्यक्ति, That is God himself. और वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। This- केवल परमेश्वर ही। This God is here on this earth as a spirit form. We will call him Holy Spirit. और ये परमेश्वर इस पृथ्वी पर है आत्मा के रूप में, जिसे हम पवित्र आत्मा इस तरह से कहते हैं। This Holy Spirit alone can reveal to you in your spirit who is this Jesus Christ. केवल ये पवित्र आत्मा ही आपकी आत्मा पर प्रकट कर सकता है कि यीशु मसीह कौन है। ये आपकी आत्मा पर वो प्रकट कर सकता है।
all the other knowledges that is there in the world, इस संसार में चाहे जितना भी ज्ञान हो, वो जो सारे ज्ञान हैं वो it is तो all fleshly knowledge, केवल शारीरिक ज्ञान होते हैं, वो शरीर का ज्ञान होता है, worldly ये knowledge. तो संसार का ज्ञान है। We will see Jesus in a worldly way, तो हम यीशु को संसार के तरीके से देखेंगे, just like any other person. बिल्कुल दूसरे किसी साधारण व्यक्ति के जैसे ही। If any man wanted to know him, really wanted to know who Jesus is, अगर कोई मनुष्य सच में जानना चाहता है कि यीशु कौन है, वो वास्तव में या असली में कौन है, अगर कोई जानना चाहता only है one person can reveal him to you. तो केवल एक ही व्यक्ति उसे आप पर प्रकट कर सकता है। You may ask, how do you know this? शायद आप पूछेंगे आपको ये कैसे पता है? This Jesus said ये यीशु ने कहा when he है was here on this earth. जब वो इस पृथ्वी पर थे। You know the Bible say, बाइबल कहती है Matthew chapter 16. मत्ती अध्याय 16 में, We will read from verse 13 onwards. हम वचन 13 से आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, We'll hear the word. वचन सुनते हैं। We be attentive, my beloved. आप इसे गौर से सुनिए भाइयों। When Jesus came into the region of Caesarea When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, Philippi, he asked his disciples, he asked his disciples, saying, Who do man says that I am, do men say that I am? the Son of Man? The Son I of am. Man. I am. So they said, This is, some John the Baptist, some say John the Baptist, some say Elijah, some say Elijah, and others Jeremiah, others say Jeremiah, or one of the prophets. one of the prophets. He said to them, He said, well, listen here. यहाँ पर गौर से सुनिए, Jesus asked the people, disciple, यीशु ने अपने चेलों से इस तरह से पूछा, okay, ठीक tell है, me what the people are saying about me. Who am I? यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, Then और फिर they replied, उन्होंने जवाब दिया, some say कुछ कहते हैं you are a prophet. कि तू भविष्यवक्ता है, Some say कुछ कहते हैं John the Baptist whom the king killed, he has come back. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसे राजा ने मार दिया है, वो फिर से वापस आ गया है। Some say Jeremiah. कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह है, Some say Elijah. कुछ कहते हैं एलिया है, Some says you are one of the prophets. कुछ कहते हैं कि तू भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। People have so many ways to speak. लोगों के पास कहने के लिए बहुत से तरीके हैं। What the people say about Jesus? यानी लोग यीशु के बारे में क्या कह Who रहे is थे? Jesus? यीशु कौन है? Even today, और आज भी some say he is a prophet. कुछ लोग कहते हैं वो भविष्यवक्ता है, Some say he is a son of Mary. कोई कहते हैं कि वो तो मरियम का पुत्र है, Some say he is a son of Joseph. तो कोई लोग ये कहते हैं वो यूसुफ का पुत्र है, Some says he is Beelzebub. कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बेल्जबब है। See, they say so many things. देखिए वो बहुत सी बातें कहते हैं, They have so many names to say. वो कहने के लिए बहुत से नाम लेते हैं, But let them say whatever it may be. लेकिन चाहे उन्हें जो कहना है कहने दो। And he asked a question. फिर उसने एक सवाल पूछा। 16:15 says Jesus asked the question directly to them. ये वचन कहता है कि यीशु ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा। He said to them, But who do you say that I am? Who do you say that I am? That's a question now. देखिए यहाँ पर ये सवाल है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इस तरह से यीशु ने उनसे पूछा। You see, देखिए people may say anything. लोग शायद बहुत कुछ कह दे, People may have 1,000 questions, 1,000 names and 1,000 ways and 1,000 things they may say. शायद लोगों के पास में हजारों तरीके हैं, वो हजारों बात भी कह Who सकते do हैं, you say? लेकिन क्या आप ये Who कहेंगे do you say I am? कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Who do you say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं What do कौन you हूँ? say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? What do you say who I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Jesus himself asked the question. यीशु ने स्वयं ये सवाल पूछा, Let this question be with you today. और आज ये सवाल आपके साथ रहे। He is asking you this question. वो आपसे ये सवाल पूछते हैं, What do you say? Who am I? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Do you have this knowledge? Do you know who am I? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? Do you know who is Jesus? क्या आप जानते हैं कि यीशु कौन है? What do you say? तो आप क्या कहते हैं? Beloved, प्रिय लोगों, this answer is very important. ये उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण That है। time Peter said, और उस समय पतरस ने कहा, Peter answered, पतरस ने उत्तर दिया, we'll hear that word what Peter said. Simon Peter answered and said, Simon Peter answered and said, You are the Christ,
You are the Christ, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। the Son of the living God. देखिए, कहता है शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस तरह कहा, You are the Christ, तू तो मसीहा है, Son of the living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र है। What Jesus replied, तो फिर यीशु ने क्या उत्तर दिया? जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, ब्लेस्ड आर यू साइमन बारजोना, फॉर फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट रिवील्ड दिस टू यू, बट माई फादर हु इज इन हेवन। देखिए, यहाँ पर यह कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Peter said, पतरस ने कहा, You are the Christ, तू ही मसीहा है, Son of the living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Immediately Jesus replied to him, और तुरंत ही यीशु ने उसे उत्तर दिया, You are blessed Peter, पतरस, तू तो धन्य है, you are blessed Simon. हे शमोन, तू धन्य है, Flesh and blood has not revealed this to you, क्योंकि मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया है, but my Father who is in heaven. परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने प्रकट किया, And he is the one has revealed this to you. और उसी ने तुझ पर ये सच्चाई प्रकट की है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, people are discussing in this world. लोग इस संसार में चर्चा करते हैं, They are discussing the flesh and blood knowledge. वो केवल मांस और लहू के द्वारा उन्हें जो ज्ञान मिला है उसी से चर्चा करते You हैं। really want to know who Jesus is? आप सच में जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन है? Only one person can reveal this to you. That person is God himself is spirit. तो लहू और मांस नहीं, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति आप पर इसे प्रकट कर सकता है, वो तो स्वयं परमेश्वर है, जो कि उसकी पवित्र आत्मा है। Father who is in heaven has revealed this to you, Simon. हे शमौन, स्वर्ग के परमेश्वर पिता ने तुझ पर ये प्रकट किया है, You are blessed. तू धन्य है। On this revelation knowledge, और इसी प्रकाशन के ज्ञान पर I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, No evil forces of evil of hell cannot touch it. और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, कोई उसे छू नहीं पाएंगे, No one can come against it. कोई उसके विरुद्ध में नहीं आ सकते हैं। On this knowledge, और इसी ज्ञान पर, on this revelation knowledge, इसी प्रकाशन के ज्ञान पर, beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और you बहनों, must know Jesus. आपको यीशु को जानना चाहिए। He came to give us life. वो हमें जीवन देने के लिए आए हैं। He is, वही है, He is, वही हैं, He was, वो थे, He is the same forever and ever. और वो युगान युग के लिए एक जैसे हैं। Jesus loves you so much. यीशु आपसे इतना प्रेम करते हैं। He is the love of the Almighty God Himself. वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम हैं, वही तो प्रेम हैं। Try to know Him more and more through His Word. उसके वचन के द्वारा उसे और ज्यादा जानने की कोशिश करते जाइए, You will never be the same. और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus came यीशु मसीह to आए give us life, कि हमें जीवन दे, life abundance, बहुतायत का जीवन दे, or eternal life. अनंत जीवन दे, Live with Him forever. कि हम उसके साथ सदा के लिए In रहें। the next episode, और अगले एपिसोड में I will continue this message. मैं इस संदेश को जारी रखूंगा What Jesus has done on this earth. कि प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर क्या किया है, What- क्या क्या किया, What Jesus had done to the wicked devil. कि यीशु ने उस दुष्ट शैतान के साथ में क्या किया है, What He has done to him. उसने उसका क्या किया है, What is the condition of this wicked enemy today और आज इस दुष्ट शत्रु यानी शैतान की दशा क्या है before Jesus Christ. यीशु मसीह के सामने। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, it's very important to know. ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Knowing this truth, इस सच्चाई को जानना, when you will be made free. तो आप आजाद हो जाएंगे। You will be made free from the bond captivity of the enemy. आप शत्रु के सारे बंधन से, उसकी गुलामी से आजाद हो जाएंगे। You will be made free from the deception of the enemy. आप शत्रु के धोखे से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे। You will be totally free from him, आप उससे पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे, and you will be with और God. आप परमेश्वर के साथ होंगे। You will live with God forever. आप हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, Not only in this earth, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, but also when you leave this earth and go, will live with God. लेकिन जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो आप परमेश्वर के साथ में I रहेंगे। pray मेरी प्रार्थना है God
our Heavenly Father give you wisdom, knowledge, understanding to know the Lord Jesus Christ and to know the truth in the name of Jesus Christ. कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुद्धि और आत्मा दे और समझ दे कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान पाए और आप उसकी सामर्थ को जान पाए, ये आपको ज्ञान दे। Father, in the name of Jesus, let every single person receive this truth in their heart, in their mind, in their understanding, Father. पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति, यहाँ उपस्थित हर एक प्रियजन इस सच्चाई को समझे और इस सच्चाई को वो स्वीकार करने वाले बन जाएं। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन।